Language and Culture. This is the second unit of English B for BA program first year students of Delhi University. And here in this video, we are going to learn a passage and some questions and answers related to this passage. So first we try to understand the passage which is given here. When do we say that someone knows a language? When he or she can make grammatically correct sentences, or when he or she can use the language in real life situations. It is very important to answer this question because to talk of the rules of grammar is to talk in a social vacuum. Until a learner knows how to use the resources of grammar to send meaningful sentences in real life situations, he or she cannot be said to know a language. He or she must know what variety to use in what situation, how to vary the style according to whom he or she is addressing, when to speak or when remain silent, when and what kind of gestures are required to go with what speech. While these are picked up naturally and unconsciously in the first language or mother tongue, in second and foreign language learning, they require special attention. So this is the passage. Now try to understand this passage in English, in Hindi also. When do we say that someone knows a language? हम ये कब कहते हैं कि किसी व्यक्ति को लैंग्वेज आती है या किसी व्यक्ति को लैंग्वेज का ज्ञान है? When he or she can make grammatically correct sentences. कब एक व्यक्ति, चाहे वो ही हो और सी हो, वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बना पाता है. और when he or she can use the language in real life situations. और कब he or she real life situations में लैंग्वेज को यूज कर पाता है. It is very important to answer this question because to talk of the rules of grammar is to talk of in a social vacuum. इन प्रश्नों का उत्तर देना या इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रामर के रूल्स के बारे में बात करना ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी सोशल वैक्यूम में बात कर रहे हों, यानी हम उस स्थान पे बात कर रहे हो जहाँ पे कोई भी मौजूद ना हो और nobody is listening to us और हमें कोई भी ना सुन रहा हो. Until a learner knows how to use resources of grammar to send meaningful sentences in real life situations, he or she cannot be said to know a language. जब तक एक लैंग्वेज को सीखने वाला ग्रामर के रिसोर्सेस को मीनिंगफुल सेंटेंसेस रियल लाइफ सिचुएशन में भेजने में एबल ना हो, सक्षम ना हो, तब तक ही अथवा शी को हम ये नहीं कह सकते कि वो एक लैंग्वेज को जानता है या वो एक लैंग्वेज को जान सकता है. He or she must know what variety to use in what situation, how to vary the style according to whom he or she is addressing, when to speak or when remain silent, when and what kind of gestures are required to go with what speech. He or she must know what variety to use in what situation. कोई भी व्यक्ति जो भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, चाहे वो ही हो या सी हो, उसे यह अवश्य ही पता होना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में किस वैरायटी की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, यानी किस सिचुएशन में किस तरीके से वो बोल रहा है लैंग्वेज को यूज़ करके, यानी किस स्टाइल में बोल रहा है, किस वे में बोल रहा है, जिससे कि जो एक्सप्रेशंस है उस लैंग्वेज का, जो भी बात वो कहना चाह रहा है वो एकदम परफेक्ट एक्सप्रेशंस निकले ताकि वो बात एकदम क्लियर स्पष्ट समझ में आए सामने वाले पर्सन को. हाउ टू वेरी द स्टाइल अकॉर्डिंग टू हुम ही और सी इज एड्रेसिंग. व्यक्ति, चाहे वो ही हो सी हो, वह जिस भी व्यक्ति को एड्रेस कर रहा है वो किस स्टाइल से एड्रेस कर रहा है, किस सिचुएशन में किस स्टाइल से एड्रेस कर रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है. व्हेन टू स्पीक और व्हेन रिमेन साइलेंट, कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसे भी याद रखना चाहिए, इसे भी हमेशा जब भी whenever we are talking to someone we must keep this thing in our mind
that when we should talk and when we should remain silent. When and what kind of gestures are required to go with what speech, और किस टाइप की स्पीच में किस टाइप के गेस्चर्स यानी बॉडी लैंग्वेज हाव भाव का रिक्वायरमेंट होता है और कैसे हमें उसका यूज़ करना चाहिए, ये भी एक लैंग्वेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी नॉलेज हमें या किसी भी लैंग्वेज लर्नर को अवश्य होनी चाहिए. While these are picked up naturally and unconsciously in the first language or mother tongue, in second and foreign language learning they require special attention. जबकि जो फर्स्ट लैंग्वेज लर्नर होते हैं या फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने वाले पर्सन्स होते हैं या फर्स्ट लैंग्वेज जिनकी होती है उसमें तो ये बातें नेचुरली और अनकॉन्शियसली ये सारी बातें सीख जाते हैं लोग या हम लोग सीख जाते हैं. लेकिन अगर बात सेकंड लैंग्वेज की हो या फॉरेनर लैंग्वेज की हो तो उस पे उसको सीखने के लिए एक स्पेशल अटेंशन, एक विशेष एक खास अटेंशन ध्यान देना या एक खास वर्कआउट की आवश्यकता होती है. तभी जाके हम किसी अदर लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज को या थर्ड लैंग्वेज को सीख पाते हैं. Now try to understand the questions and the answers related to this passage. The first question is, when is a person said to know a language? कब एक व्यक्ति को लैंग्वेज का ज्ञाता या लैंग्वेज को जानने वाला कहा जाता है या लैंग्वेज को सीखने वाला कहा जाता है. A person is said to know a language when he knows how to use the resources of grammar to send meaningful messages in real life situations. एक पर्सन को एक लैंग्वेज का ज्ञाता या एक लैंग्वेज को जानने वाला या एक लैंग्वेज को जान सकने वाला उस कंडीशन में कहते हैं जब वह व्यक्ति जो भी उस लैंग्वेज को सीख रहा है, किसी भी लैंग्वेज को सीख रहा है, तो अगर वो व्यक्ति उस लैंग्वेज में ग्रामर का इस तरीके से यूज़ करे कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस में जो सेंटेंसेस लिख रहा है उस ग्रामर का यूज़ करके वो परफेक्टली मीनिंगफुल सेंटेंसेस व्यक्त करने में सक्षम हो और अपनी बात को इस तरीके से रखे कि सामने वाले के पास कंप्लीट मीनिंग के साथ पूरी अभिव्यक्ति उसकी व्यक्त हो. अगर वो व्यक्ति ऐसा कर पा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ अ नोवर ऑफ अ लैंग्वेज या दैट पर्सन knows that language and he has the knowledge of that language. इस तरीके से हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि what are picked up naturally and unconsciously in the mother tongue. मदर टंग जो हमारी मतलब बचपन से हम अपने माता पिता से अपने घर से जो लैंग्वेज सीखते आ रहे हैं, माता पिता जैसा बोलते हैं वैसे बच्चे भी बोलते हैं, उसी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं. लेकिन हो सकता है कि माता पिता अनएजुकेटेड हों तो बच्चे अगर बाहर की दुनिया से यानी एजुकेशन की लाइन से जुड़े हुए हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो अदर लैंग्वेजेस भी सीख जाते हैं. वो अलग बात है, वो बाहर के लोगों के साथ दूसरे टाइप से बात करते होंगे लेकिन घर में आके वो अपनी मदर टंग बोलते हैं अपने मम्मी पापा या रिलेटिव्स के साथ. तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि व्हाट आर पिक्ड अप नेचुरली एंड अनकॉन्शियसली इन द मदर टंग. मदर टंग हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है और मदर टंग वो लैंग्वेज होती है जिसे हमें विशेष ध्यान देके बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता. बच्चे खुद ही उसे पिक कर लेते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं. जब उन्हें बोलना भी नहीं आ रहा होता है तब से उनके कानों में वो आवाज़ पड़ती रहती है और वो माइंड उनका स्टोर करता रहता है. वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग जो गेस्चर्स होते हैं, अलग अलग हाव भाव होते हैं, अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, वो सारी चीज़ वो कैप्चर करते रहते हैं और उनका माइंड उसको स्टोर करता रहता है और वो नेचुरली और अनकॉन्शियसली उस लैंग्वेज को सीख जाते हैं जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है. तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज से रिलेटेड है. अ पर्सन पिक्स अप अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इन वेरियस सिचुएशंस.
varying styles according to the person addressed, the time of speaking and remaining silent, and the gestures required to go with the kind of speech are picked up naturally and unconsciously in the mother tongue. यानी मदर टंग ही वह लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में एक व्यक्ति क्या करता है, अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इन वेरियस सिचुएशंस, यानी वेरियस सिचुएशंस में डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग टाइप की जो लैंग्वेज की स्टाइल्स है वो सारी वैरायटीज़, अलग अलग लैंग्वेज की जो वैरायटीज़ हैं, एक ही लैंग्वेज में जो अलग अलग लैंग्वेज की वैरायटीज़ हैं वो सारी वो सीख जाता है अपनी मदर टंग में. वेरिंग स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन एड्रेस्ड, जिस भी पर्सन को एड्रेस किया जा रहा है वो अलग अलग स्टाइल से किस तरीके से किस पर्सन को एड्रेस करना है वो सारी स्टाइल्स पर्सन अपनी मदर टंग में बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के सीख जाता है. द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड रिमेन साइलेंट, और ये भी सीख जाता है कि कब उसे बोलना है, कब साइलेंट रहना है. ये सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्यक्ति कैप्चर करता रहता है और सीख जाता है. एंड द गेस्चर्स रिक्वायर्ड टू गो विद द काइंड ऑफ स्पीच, और किस स्पीच में किस टाइप के हाव भाव होने चाहिए, ये सारी चीज़ें व्यक्ति अपनी मदर टंग वाली लैंग्वेज में, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में सीख जाता है. तो यही आंसर था सेकंड क्वेश्चन का. थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड टॉक इन अ सोशल वैक्यूम. सोशल वैक्यूम में किसे टॉक कहा गया है? टॉक इन अ सोशल वैक्यूम किस बात को कहा गया है? यानी सोशल वैक्यूम में किसी बात को करना, ऐसी जगह किसी बात को करना जहां नोबडी इज लिसनिंग टू अस. सोशल वैक्यूम, वैक्यूम वो स्थान होता है जहां पे एयर नहीं होती है. उसी टाइप से सोशल वैक्यूम वो स्थान है जहां पे लोग होकर भी हमको नहीं सुन रहे या हमको नहीं समझ पा रहे हैं, या ऐसा स्थान जहां पे कोई नहीं है और हम अकेले बड़बड़ाते जा रहे हैं, अकेले बोलते जा रहे हैं. दैट प्लेस इज कॉल्ड सोशल वैक्यूम. तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉल्ड टॉक इन अ सोशल वैक्यूम. किसे टॉक इन अ सोशल वैक्यूम कहा जाता है? आंसर, टॉकिंग ऑफ द रूल ऑफ ग्रामर इज टू टॉक इन अ सोशल वैक्यूम. टॉकिंग ऑफ द रूल ऑफ ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के ग्रामर के रूल के बारे में बात करना, बट ये नहीं बताना कि किस सिचुएशन में किस तरीके से बोलना है, किस वर्ड को किस तरीके से हमें प्रोनंसिएट करना है, किस सिचुएशन में हमारा कैसा गेस्चर होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, और व्हेन वी शुड स्पीक, व्हेन वी शुड रिमेन साइलेंट, विच वर्ड वी शुड टॉक इन अ हाई टोन एंड विच वर्ड वी शुड टॉक इन अ लो टोन. ये सब बातें अगर हमें नहीं पता हैं और वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द रूल्स ऑफ ग्रामर, देन इट मीन्स it is talk in a social vacuum. I think you have understood all these three questions and the passage which I have explained in this video. If you have not subscribed this channel on which you are looking this video, then please subscribe this channel so that you can get the notifications of my next video also. Thank you very much for watching this video. Thanks again.